Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge RP Market Report. So let's start with global market में क्या हो रहा है. So कल US मार्केट में एक डाउनफॉल देखने मिला. Nasdaq was down by 1.9%. S&P 500 was down by 1%. European markets were slightly positive. एशियन मार्केट में आज मिक्स देखने मिल रहा है. निके, हैंगसेंग, ताइवान इज डाउन, कॉस्पी इज अप. गिफ्ट निफ्टी शोइंग माइल्ड, you can say almost we are flat. Today's session would be important because after a sharp fall in Indian market, एक माइल्ड रिकवरी देखने मिला था कल हमें, which is also could not sustain at higher level. चलिए न्यूज देख लेते हैं आज क्या न्यूज इंपैक्ट कर रही है. सो एनटीपीसी अनाउंस है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम फॉर इट्स न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव्स. शोभा का Q3 अपडेट आया. 29% YOY डिक्लाइन इन सेल्स बट एवरेज प्राइस रियलाइजेशन इंप्रूव्ड बाय 16.5%. सो बैड Q3 updates continue. Now result season is starting from today. TCS result would be announced tomorrow, so that will kickstart this quarter's results. And in fact, जितना भी हम लोग Q3 update देख रहे हैं, even this quarter's result doesn't look that encouraging. GDP growth estimate for FY25 at 6.4%, which is slowest in last 4 years. Kalyan Jewellers पे City maintains buy with price target of 810. CMP is 723. That's around 10% upside from current level. Ola gets administrative warning from SEBI for timely disclosure. So they failed to disclose some news on time. Due to that, they are getting this warning letter. 6 new scripts entering F&O segment: Castrol, Gland, NBCC, Phoenix, Solar Industries, and Torrent Power. 3 stocks in F&O ban: Hind Copper, Manappuram, RBL Bank. Non-life insurance, that December premium update indicates that premium income declined by 3% and Go Digit premium income declined by 4%. So this first premium 3% decline is for ICICI Lombard. अब निफ्टी का व्यू देख लेते हैं. So positionally if you see निफ्टी चार्ट doesn't look that encouraging. एक फॉल के बाद एक रिकवरी देखने मिला हमें, जो 20 पीरियड SMA से वापस फॉल आना स्टार्ट हो गया. नाउ आफ्टर बिग रेड कैंडल we can see small recovery candle, but अगर ये लो टूटता है आज तो we are heading towards the old low, that is 23,200. यहाँ पे Bollinger Band का lower level भी है, so I think that might coincide or provide some support. So market is clearly in sell on rise mode. Bank Nifty chart looking more scary because we are almost at support level. अगर ये support टूटता है, which is 49,750, so definitely we are heading for a election day low. स्टॉक फ्रंट पे एजिस लॉजिस्टिक एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है with huge volume. So now action would be, now what I do in these stocks is I don't buy blindly. When market is correcting, आपको अच्छे स्टॉक्स का लिस्ट बनाना होता है. So for example, अगर आप देखो in day before yesterday's fall, there was this stock Goldium, Garuda. Okay, they were not falling as much as other stocks. So जो बाकी स्टॉक जब 6-7% डाउन थे, ये these stocks were down by 1 or 2%. And जैसे ही कल रिकवरी आया, these two stocks they were flying. Goldium was up by 18%, Garuda was up by 12%. So this way we have to keep a list of these strong stocks. So Aegis Logistics एक लिस्ट में रखूंगा मैं, और any dip in this in weak market and जब लग रहा है मार्केट रिकवर हो रहा है, we can add these stocks.
ओआई फ्रंट पे ऑब्वियसली कल मार्केट गैप अप हुआ था एंड थोड़ा रिकवरी देखने मिला था, सो पुट राइटर्स गैदर्ड सम करेज एंड थोड़ा पुट राइटिंग किया है इन लोगों ने, बट अगेन नाउ देयर पेशेंस वुड बी टेस्टेड टुडे। सो ग्लोबली यूएस मार्केट डाउन है, इवन आ मार्केट में भी एक रिस्क है, अगेन एक सेलिंग का वेव आ सकता है। सो दीज पुट राइटर्स वी हैव टू सी व्हाट दे आर डूइंग। सो कल जैसे 23,700 लेवल पे राइटिंग हुआ है, 23,750 लेवल पे, दोनों लेवल पे माइल्ड पुट राइटिंग हुआ है। सो अगेन दीज वुड बी ट्रैप इफ मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग टुडे। इवन कॉल राइटिंग भी ग्रेट नहीं हुआ है कल, सो म्यूटेड डे एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। अगेन मेजर रेजिस्टेंस इज एट 24,000 लेवल, जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, एंड ऑन लोअर साइड वी सी माइनर सपोर्ट्स बिटवीन 23,600 to 2300 रेंज, बट हाईएस्ट ओआई वी कैन सी अराउंड 23,000 एंड 23,200 लेवल। सो एक ह्यूज रेंज दिखा रहा है, इवन ओआई फ्रंट पे मार्केट इज इंडिकेटिंग अ स्लाइटली बिगर रेंज। एंड कल एक्सपायरी है एंड वी कैन सी ऑलरेडी मैनी ट्रैप सेलर्स, ओके, जो पुट राइटर्स जो ट्रैप्ड है, कल एक्सपायरी है, सो वी कैन सी एक्सपायरी में थोड़ा डाउन मूव देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप सेलर्स। सो इनफैक्ट लास्ट एक्सपायरी में भी हमने देखा था, जैसे जब ट्रैप होते हैं सेलर्स तो क्या होता है, ओके। सो टिल एक्सपायरी अगर उन्हें एग्जिट नहीं मिलता है, सो डेफिनेटली एक प्रेशर बने रहता है। सो दिस एक्सपायरी में एनी मेजर रिकवरी इज लुक्स आउट ऑफ क्वेश्चन। सो आप कॉल सेल पे ही फोकस कीजिए। चलिए आज के लेवल देख लेते हैं। अब कल का अपना व्यू वाज बैंग ऑन टारगेट, सो वी इंडिकेटेड द लेवल जहां पे बीच में नो ट्रेड जोन था एंड फुल डे मार्केट रिमेन इन दैट रेंज। एंड कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था, सो जब मार्केट रेंज में होता है क्या होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्रीमियम कीप ऑन डिक्लाइनिंग। सो यस वी कैन यूज इट फॉर नॉन डायरेक्शनल ऑल्सो। आज का मेरा लेवल है 23,694 के नीचे हम लोग शॉर्ट ट्रेड ट्राई करेंगे टिल 23,550 एंड 23,474 वुड बी द सेकंड टारगेट। अपसाइड पे बाय लेवल वुड बी 23,800 के ऊपर वी कैन फॉर्म अ बुलिश व्यू टिल 23,873 एंड 23,950 तक। So this is whole target up, levels I'm talking about. Now, if you look at the chart, below this level, it will open a target for 23,200 to 260 range, जो previous support level है। Now, अब आज मैं फोकस करूंगा ज्यादा बैंक निफ्टी पे, बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है 50,120, it might take market towards a previous low which is 49,750, and below that some sharp fall can be seen because this is the major breakdown level for bank nifty. So yes, we need to be alert on bank nifty as far as bank nifty is concerned. Buyable level would be 50,445, जिसके ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं टिल 50,689, एंड ये लेवल क्रॉस करने पे फर्दर राइज आ सकता है, बट दिस लुक्स डिफिकल्ट। सो पूरा फोकस मेरा रहेगा सेल बिलो लेवल पे। अब जैसे कल हमने इंडिकेट किया था दैट मार्केट जो स्ट्रॉन्ग अबो लेवल था, एनी रिकवरी टिल दैट लेवल, एंड वहां से अगर एक डिप आता है तो वी कैन गो शॉर्ट, एंड कल वैसे ही हुआ। मार्केट एक रिकवरी के बाद ये जो लेवल था हमारा स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, उसके थोड़ा नीचे से ही अगेन गिरना स्टार्ट हो गया। सो अगर इंट्राडे भी मैं कॉल सेल पे फोकस करता था, आई वुड हैव गॉट सम मनी obviously after some rise. So that's what we call sell on rise, right? So yes, view would be sell on rise. कोई इंडिकेशन बुलिशनेस का तो नहीं दिख रहा है। अब चलिए हम डाउ जोन्स का चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ डाउ जोन्स इज क्रूशियल नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनली जो लोकल वीकनेस है हमारा, वी डेफिनेटली नीड सम सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। सो अगर ग्लोबल मार्केट भी साथ में वीक हो गई, सो हियर सेलिंग माइट गेट मोर अग्रेसिव। सो यूएस मार्केट का देखो, अगर एक चैनल में ऊपर जा रहा था, ये चैनल का ब्रेकडाउन आया था यहाँ पे, अब ये चैनल का टारगेट तो और नीचे तक आएगा। इफ यू सी हियर वी माइट टेस्ट द
and we are now trading below 20 period SMA on weekly chart. So मैंने Bollinger chart plot किया है, Bollinger band. We are already trading below 20 period SMA on weekly charts. So next target becomes the this. So अगर 40 to 162 level break होता है, this would might get aggressive, selling might get aggressive and एक decent fall देखने मिल सकता है. Now everything boils down to we conquer back, Dow Jones conquer back the 20 period SMA on weekly. अब यहाँ पे एक you can see एक triangle जैसा बन रहा है. अब you have to see अगर ये breakdown आता है तो then क्या होता है. Okay, we can also say small inverted cup and handle is also forming. The way इंडियन मार्केट्स में फॉर्म हुआ था, निफ्टी में कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ था, सिमिलर कप एंड हैंडल यहां पे फॉर्म हो रहा है. 2 days बैक वी हैव सीन दैट PSE, ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एक वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 4%. सो अगर ये आप चार्ट देखें, ओके, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ इलेक्शन डे लो. So obviously this looks like clearly a breakdown. Another sector breaking below election day low or is almost there is the metal sector. So आप देखते हैं ये जो लो ये break हो रहा है यहाँ पे. So if we sustain here, okay, that is not good for मेटल सेक्टर. तो यस, ये दो सेक्टर से आप थोड़े दूर रहिए टिल थिंग्स गेट क्लियर आउट. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. अगेन OI डेटा अगर आपको सीखना है, सैटरडे वी हैव अ वेबिनार, आप वो अटेंड कीजिए. नाउ देयर इज गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर फ्रॉम बॉम्बे. अगर आप बॉम्बे से है तो आप अटेंड कर सकते हैं हमारा ऑफलाइन सेमिनार विच इज शेड्यूल ऑन सैटरडे एंड संडे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव मार्केट सेमिनार्स, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, हम लोग लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, सो देन ऑल्सो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. वी आर ऑर्गेनाइजिंग लाइव मार्केट सेमिनार ऑल्सो. फॉर दैट यू हैव टू फिल अप द फॉर्म गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नंबर्स दिए हैं हमने वहां पे, आप वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं.